جوانی سے لے کر بڑھاپے تک ہمیں راستہ بتلاتا ہے تاکہ ہم اسلام جیسے سچے مذہب کے قوانین پر عمل کر کے اپنی زندگی کو تابناک بنا سکے اور زندگی کا چال چلن اور رنگ ڈھنگ سیکھ سکے اور ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے اور انسان ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے. مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو مساوات کا درس دیتا ہے اور ایک دوسرے حقوق کو متعین کرتا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی آخری خطبے میں اپنی امت کو مساوات کا درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اے لوگو تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. سنو، تمہیں کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی مالدار کو کسی غریب پر، کسی غریب کو کسی مالدار پر کوئی فضیلت نہیں. تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. محترم سامعین، مساوات کا جو درس اسلام نے دیا دنیا کے کسی مذہب میں اس کا تصور نہیں ملتا، جس نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے حقوق کو بھی متعین فرمایا ہے اور انہیں پورا پورا حق دیا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تم جس جانور سے بوجھ دھونے کا کام لیتے ہو اس پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے لے کر وہ چل نہ سکے اور اسے پیٹ بھر کھانا دو. حقیقت میں یہ موضوع اس قدر تفصیل طلب ہے، اس پر بولنے کے لیے گھنٹوں درکار ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ مذہب اسلام نے انسانیت کو ایک گرہ میں پرو دیا. اونچ نیچ، ذات پات، رنگ و نسل و وطن کے فرق کو مٹا کر انسان کو ایک ایسا مساوی درجہ عطا فرمایا جسے اپنانے کے بعد ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے اور انسان بے خوف ہو کر اپنی زندگی کا سفر طے کر سکے. میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدرد سے سریا کر دیا. خود ناتے جورا پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود ناتے جورا پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. وما علینا الا البلاغ. خدا حافظ. شیخ محمد کیف نوری ہیں، ہاتھ اٹھا بیٹھا دیتے ہیں اور بیٹھا جج صاحبان کو سانس لینے دیجیے. مومن آمنہ عمران احمد، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری بچی ہوگی، اگر اذان ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ ایک اور اگر وقت رہا تو کر دیں گے. مومن آمنہ، جج صاحبان نوٹ کریں، سیریل نمبر 10، مومن آمنہ عمران احمد، خشیت الہی اور اس کے تقاضے. صدر محترم، معزز اہل میزان اور حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس تقریری مقابلے میں میری گفتگو کا عنوان ہے خشیت الہی اور اس کے تقاضے. سامعین، اگر آج ہم اپنے ماحول کا مشاہدہ کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ ہمارا معاشرہ بے شمار برائیوں میں مبتلا ہے. جھوٹ، چغلی، غیبت، وعدہ خلافی، شراب نوشی، بحث گوئی، امانت میں خیانت، ظلم، تشدد مسلمانوں کا شعار بنتے جا رہی ہے. ہماری بے عزتی کا عالم یہ ہے کہ ہم گناہ کو گناہ بھی تصور نہیں کرتے. گناہوں کا ارتکاب کرنے کے بعد اس پر شرمندہ ہونا تو درکنار ہم اسے فخریہ طور پر بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ذلت و رسوائی ہم پر مسلط کر دی گئی ہے. زمین ہم پر تن ہوتے جا رہی ہے. ظلم ستم کے پہاڑ ہم پر توڑے جا رہے ہیں. ہمارے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کی جا رہی ہے. لیکن افسوس اور 100,000 افسوس، ان سب کے باوجود ہماری آنکھیں نہیں کھلتی اور ہم اپنے رب کی طرف رجوع نہیں ہوتے. آخر ان بدعمالیوں سے نجات کی کیا صورت ہے؟ کیا کوئی نسخہ کیمیا ہے جس کے ذریعے برائیوں کے سیلاب پر بند باندھا
लोग जिनके दिल खौफ खुदा से लबरेज है, बशारत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह के डर से गिरिया गुजारी करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जब किसी मोमिन का दिल खौफ खुदा से लरसता है तो उसकी खताएं इस तरह झड़ती है जैसे दरख्त के पत्ते झड़ते हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी मोमिन की आंखों से खौफ खुदा की वजह से आंसू निकलता है सुभान मुकर्रम। अस्सलामु अलैकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। हर बच्चा यानी हर इंसान, और हर इंसान जिस्म और रूह का मुरक्का है। इसलिए इसकी परवरिश में जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ रूहानी फजा का होना भी जरूरी है, क्योंकि रूहानी फजा ही बच्चे को इंसानी कदरों से आरास्ता करती है। इसी मकसद को और इस तरह के दिगर तालीमी और तरबियती मकासद को हासिल करने का जज्बा हमारा मुहर्रिक बना, और शमा अवामी इदारा ने इस बाबरकत प्रोग्राम की शुरुआत की। हजरात, चूंकि मैं खुद भी वक्त के मुहासबे की जद में हूँ और वक्त की पाबंदी का मुझको भी ख्याल रखना है, इसलिए अपनी गुफ्तगू का रुख मोड़ते हुए मैं एक ज़रूरी बात अदारे के ताल्लुक से आपसे कहना चाहूँगा। जैसा कि मुझसे पेशतर मेरे दोस्त जनाब मोहम्मद डॉक्टर इमरान साहब ने आपको इस बात से वाकिफ करा दिया है कि ये शमा अवामी इदारे का 25वां साल है। हजरात, इन 25 सालों में अरकान इदारा ने फलाई और दीनी कारकर्दगी में बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश की है, और अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी भी अता फरमाई है। दीनी और फलाई खिदमात की अंजाम दही में हमेशा हमारे बुजुर्गों ने हमारी रहनुमाई फरमाई, वरना इतना लंबा सफर तय कर पाना हमारे लिए बड़ा कठिन था। आज हमें शिद्दत से अपने उन बुजुर्गों की कमी का एहसास होता है जो कि अब इस दुनिया में ना रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन, और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और हमारे वो खैरख्वाह और बुजुर्ग हजरात जो अब भी बाहयात हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे सरों पर उनका दस्ते शफ़क़त कायम रखे। खुसूसियत के साथ आज मैं एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करना चाहूँगा जो कि 25 सालों से मुसलसल हमारी रहबरी और रहनुमाई करती आ रही है। अरकान इदारा हमेशा ही इनके एहसानमंद रहेंगे। वो शख्सियत है हजरत मौलाना मकसूद आलम साहब की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ने हमेशा ही हमारी रहबरी और रहनुमाई फरमाई है, और साथ ही साथ किसी भी मसाइल से हम दो चार हुए हैं, हमने हजरत से रुजू किया है और हजरत ने उन मसाइल का हल हमारे सामने पेश कर दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हजरत को सेहतमंद और तवाना रखे, आमीन आमीन, और उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मैं तमाम अरकान इदारा की जानिब से
हजरत का शुक्रिया अदा करते हुए ये इल्तिजा करना चाहूँगा कि मैं जब चलूँ तो ये दौलत मेरे साथ रख देना। मैं जब चलूँ तो ये दौलत मेरे साथ रख देना। मेरे बुजुर्ग मेरे सर पे हाथ रख देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत, अब बिला किसी ताख़ीर के मैं इनामात की तफसील से आप हजरत को आगाह कर देना चाहता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इनामात, मैं तफसील आपको सुनाता हूँ। जूनियर ग्रुप में कुल 10 इम्तियाजी इनामात है जो कि मोमिन मोहम्मद ज़ैबान मोहम्मद फारूक की जानिब से पेश किए जाने हैं। सीनियर ग्रुप में भी इम्तियाजी इनामात की तादाद कुल 10 है जो कि फैसल अहमद सईद अहमद अंसारी की जानिब से पेश किए जाएंगे। इसके अलावा इनफरादी इनाम शरीके मुकाबला जो कि शरीके मुकाबला हर बच्चे को दिया जाएगा, यानी पूरे 140 बच्चों को ये इनफरादी इनामात दिया जाएगा। इनफरादी इनामात की तफसील कुछ इस तरह है। हमारे कारपोरेटर जनाब नईम भाई की जानिब से शरीके मुकाबला हर बच्चे को एक स्कूल बैग इनाम में दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत 2 मिनट चाहता हूँ डॉक्टर साहब। हाँ बिल्कुल। मैं आपसे 2-3 जुमले में ये बात कहना चाहूँगा कि जब से मैंने होश संभाला है और सियासी सूझबूझ की जो कुछ थोड़ी मालूमात मुझको हुई है, हमारे वार्ड में ऐसा कोई भी काउंसलर या कोई भी कारपोरेटर नहीं आया जिसने हमें 500 से ज्यादा का चंदा दिया हो। ये नईम भाई की पहली शख्सियत है जिन्होंने दिल खोलकर फराग दिली से पिछले 3 सालों से अदारे का इस प्रोग्राम में ताउन करते आ रहे हैं। मैं इनका खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। और मोहम्मद सलीम रहमतुल्लाह साहब की जानिब से हर बच्चे को एक ज्योमेट्री बॉक्स दिया जाएगा। मोहम्मद असलम अब्दुल लतीफ पाँव वाले की जानिब से हर बच्चे को एक प्लास्टिक का कंपास दिया जाएगा। डॉक्टर नायला नियाज अहमद की जानिब से शरीके मुकाबला हर बच्चे को एक रिनॉल्ट की पेन इनाम में दी जाएगी। सलमान इकबाल मोमिन की जानिब से शरीके मुकाबला हर बच्चे को सुकून तेल की एक बोतल इनाम में दी जाएगी। डायमंड ग्रुप की जानिब से भी हर बच्चे को एक नटराज की पेन इनाम में दी जाएगी। मुमताज अहमद अदर वाले की जानिब से हर बच्चे को एक गिफ्ट पैक दिया जाएगा। मिनहाज लाइब्रेरी एंड स्टडी सेंटर की जानिब से हर बच्चे को एक रिफ्रेशमेंट पैकेट दिया जाएगा, यानी उसमें कुछ नाश्ता है और उसकी उर्दू कुछ मुझको अभी इस वक्त समझी नहीं तो मैंने रिफ्रेशमेंट कर दिया। नाश्ता ठीक है, नाश्ता ठीक है, भूख खोला दी आपने। फरहान शेख की जानिब से शरीके मुकाबला हर बच्चे को बराए इसाले सवाब शेख इमरान अहमद फिरोज अहमद हर बच्चे को 40 रूहानी इलाज नामी एक किताबचा दिया जाएगा। जलीस अहमद की जानिब से हर बच्चे को एक नकदी लिफाफा दिया जाएगा। जानिब से 3 कॉपी नोटबुक भी दी जाएगी। इसके अलावा दिगर हजरात ने इम्तियाजी इनामात पाने वाले बच्चों को अपनी जानिब से कुछ इनामात दिए हैं। उसकी तफसील कुछ इस तरह है। राबिया सौगात के मालिक अनीस अख्तर अब्दुल शकूर की जानिब से दोनों ग्रुप में अव्वल दुवम और सुवम आने वाले बच्चों को एक जानमाज और एक इस्लामी फ्रेम इनाम में दिया जाएगा। और मोहम्मद उमर भाई की जानिब से बराए इसाले सवाब शबाना बानो अव्वल दुवम और सुवम आने वाले बच्चे को एक जानमाज इनाम में दी जाएगी। दाऊद सुलेमान यूनानी दवाखाना की जानिब से दोनों ग्रुप में अव्वल दुवम आने वाले बच्चे को एक ब्रेन टॉनिक की बोतल इनाम में दी जाएगी। मोहम्मद रिजवान रजा की जानिब से
इम्तियाजी इनामात पाने वाले 9 बच्चों को, दोनों ग्रुप के 9 बच्चों को दीनी किताबें इनाम में दी जाएगी। भिवंडी प्रेस की जानिब से दोनों ग्रुप में अव्वल, दुवम, सुवम आने वाले बच्चों को एक मेडल इनाम में दिया जाएगा। दोनों ग्रुप में अव्वल आने वाले बच्चों को एक एक्रेलिक की ट्रॉफी शादाब मोहम्मद हुसैन की जानिब से पेश की जाएगी। इंटरनेशनल सर्विसेज अकरम भाई है ना, अकरम भाई जो कि इसके ऑर्गेनाइजर है इंटरनेशनल सर्विसेज के, इन्होंने ये ऐलान करने के लिए कहा है कि जो भी बच्चा जूनियर ग्रुप में अव्वल इनाम का हकदार होगा, आइंदा साल मतलब वो दूसरी क्लास में जब वो जाएगा तो उसकी पूरी साल की फीस मैं दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ताला उनके इस इखलास को कबूल फरमाए और उनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। हजरात, ये इनामात की तफसील थी। अब मैं डॉक्टर मोहम्मद इमरान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप माइक संभालें और इस पाकीज़ा प्रोग्राम की कार्रवाई को मजीद आगे बढ़ाएं। आइए भाई साहब।